Hello everyone, I am Srishti and welcome to Card Readings with Srishti. If you find कि आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, then you can use headphones. ठीक है? So today we'll see what is the current energy of you and your person. ठीक है? So we'll see some handwritten messages at the end, which would be messages from your loved one. So let's start. And if you want to get a personal service from me, like a tarot reading or a tarot course or astro reading, anything you want, मेरा पर्सन नंबर पे यू कैन व्हाट्सएप विच इज़ 9038758500. अभी पता करते हैं व्हाट योर पर्सन व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी एंड योर पर्सन करंट एनर्जी. ओके, so we'll take one card for your person and one card for you, one at a time. Okay, so your person is, and you also, these cards are actually possible for both of you. First I'll get few cards. Currently आपका जो एनर्जी है ना, you are getting much more stable in your life. You have a vision कि आपको क्या करना है आगे चल के. And okay, so 3 cards मिले हैं. You are getting quite stable, strong and passionate for your career and your life. Currently you are in a much more stronger state compared to what you were before. So पहले शायद आप अपने पर्सन के सामने जाके गिरगिरा रहे थे या उनको फ़ोन करके मैसेज करके स्टॉक करके यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस, trying to bring the person back, but now you are much more stronger. Why? Because you are practicing a lot of spirituality. You have become much more stronger. You are practicing detachment. नीचे जो टूटा हुआ है, this shows detachment. So you have a lot of abundance because you are practicing spirituality as well. And the tower moment which you had in your life has come in reverse. That means tower moment का end हो रहा है. So you will not have any more issues which you were facing before. Tower moment खत्म हो रहा है. Your person wants you back now. Okay, so Queen of Wands, you are much more stable and your person is like missing you a lot, is having like, अगर मैं सेक्शुअली अभी इस चीज़ को थोड़ा सा लेके जाऊँ, सो योर पर्सन लेट नाइट पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट? योर पर्सन इज़ मिसिंग यू इन अ डिफरेंट लेवल. वो आपको सोच के, एंड दैट एनर्जी यू मस्ट माइट बी पिकिंग अप अपॉन. ठीक है, आप शायद उस एनर्जी को पिक अपॉन करते हो या फिर आपको वो चीज़ फील भी होता होगा. योर पर्सन वॉन्ट की एनर्जी आई है रिवर्स में, एंड हियर वी हैव अ कैट ऑल्सो. सो योर पर्सन wants to be physically intimate with you. If you have a desired person, then this is for you, but they are not able to get you, so they are getting desperate on that part. ठीक है? Okay, so next let's see what else coming from your person. What's your energy, what's their energy? So 2 cards I've taken for you and 2 cards for your person. Again 2 cards. Wow, nice. So we have got the Ace of Wands upright, which shows that you are much more focused towards growth. You have a lot of passionate energy. You have a lot of growth energy, positive energy. New beginnings are coming in your way. So you are in a very positive energy and suddenly this positivity has increased a lot. ठीक है, एंड यहाँ पे जो दुख वाला कार्ड है रिवर्स में है, 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, विच शोज कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, एंड यू आर स्ट्रेसिंग अपॉन समथिंग एंड नाउ यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी. यू आर नो मोर स्ट्रेसिंग अबाउट एनीथिंग. वेयर एज जैसे ही हम एक एनर्जी से निकलते हैं, सामने वाले इंसान जिसके साथ में हम रीडिंग लेना चाह रहे हैं या सामने वाला इंसान जिसके साथ में हम जुड़े हुए थे, उस इंसान के अंदर वो वाली एनर्जी चली जाती है. सो बिकॉज वी आर टुगेदर इन अ 3D, सो व्हेन वी वर इन एन एनर्जी, उसको लेके हम कोई एनर्जी में थे एंड वो हमें इग्नोर कर रहा था. ये कर्मा भी होता है, एंड वी गेट आउट ऑफ दैट एनर्जी. हम रन करने लग जाते हैं तो वो चेज करने लग जाते हैं. एनर्जेटिकली भी कर सकते हैं, वो आपके बारे में सोचना, आपको स्टॉक करना सोशल मीडिया पे. आप अचानक से उनको शायद स्टॉक करते करते कभी उनको फॉलो या कुछ कर दिए, तो अचानक से आप देखोगे कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब उन्होंने उस चीज़ के ऊपर नज़र दिया, राइट? दे आर लुकिंग इनटू दैट. हो सकता है वो किसी और अकाउंट से आपको फॉलो कर रहे हैं जिसको उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, जो उनका मेन अकाउंट नहीं है. सो दे आर स्ट्रेसिंग अपॉन द फैक्ट दैट यू आर नॉट विद देम, एंड उनको कहीं ना कहीं आप चाहिए हो, लेकिन सिचुएशन जैसी है उससे वो डर भी रहे हैं कि आगे आना है तो कैसे आना है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो दिखा दी थी. पहले वो इस वाले एनर्जी में थे, लेकिन अभी आप इस वाले एनर्जी में आ रहे हो, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको क्या करना है. and they have a lot of responsibilities on them, burden upon them, and they are having those responsibilities and still looking towards the past. मतलब वो आपको जो
आपके साथ में रिश्ता था उसको मिस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इस वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करना है, आपकी तरफ आना है, दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट दैट, ठीक है. Next, let's see कि what is your guidance. Okay, we have got this celebration ka card, 4 of Wands, which shows they want to marry you, they want to be with you, and if it is right for you, अगर इनसे शादी करना आपसे सही होगा, तो क्योंकि मैंने हाई प्रिस्टेस के ऊपर एक कार्ड रखा, तो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते रहिए. अगर ये इंसान आपके लिए सही होगा, आप चाहो ना चाहो इसके साथ में आप रहने लग जाओगे, लिव टुगेदर करने लग जाओगे. बेटर वुड से शादी हो जाएगी, फैमिलीज भी मान जाएगी, मतलब यू विल स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर इफ़ इट इज़ राइट फॉर यू, ठीक है. सो अगर सही होता है इंसान आपके लिए, तो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी. इंसान आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ क्लैरिटी देना चाहता है, एंड शादी का कार्ड भी आया है. व्हाट इज़ द लास्ट गाइडेंस फॉर यू गाइज. कुछ गाइडेंस का कार्ड भी ले लेते हैं. What is the guidance? Okay, we have got the Temperance and the Fool. Wow. So you should be following lot of spirituality, patience and calmness को follow कीजिए. Peace को अपने अंदर रखिए. Water affirmations दे सकते हैं. 2 cup method को भी कर सकते हैं. And Fool का कार्ड जो आता है, which shows you should be careful but at the same time relaxed and happy go lucky हो जाइए. आपको बिल्कुल beginning में जैसा था, आप जिस टाइम पे रिलेशनशिप में उनके साथ आए नहीं थे, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं थे, एक फेज़ था आपके लाइफ में, तो उस टाइम आप कैसे खुश रहा करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई आए जाए कुछ भी नहीं. हर किसी इंसान के अंदर ये वाला स्टेट कभी ना कभी रहता है, व्हेन यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग और एनीबडी. फिर हम किसी से जुड़ते हैं एंड फिर उससे दुख मिलता है, तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज ट्रिगर होती है, फिर जाके हम नेगेटिव होते हैं. लेकिन जिस टाइम पे हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना, दैट बेफिक्रे टाइप का, सो वैसे हो जाना है आपको, पर थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है, बट शांति को बना करके रखना है, अपने पैसे पे फोकस करना है, सबके साथ में अच्छा रिश्ता बना करके रखना है. सो बेफिक्रे टाइप का हो जाना है आपको. यही गाइडेंस है आपके लिए. एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही है. अच्छा, यहाँ पे जैसे जजमेंट का कार्ड रिवर्स में, जस्टिस का कार्ड भी रिवर्स में आ रहा था, सो आपके साथ में इनजस्टिस हो रहा था इतना दिन तक, सो उस चीज़ का भी फ्लिप होने वाला है, क्योंकि वो अपराइट में आ जाएगा, राइट. एंड आपको स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी. आपको इमोशनल स्टेबिलिटी वाले स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हो. नाउ लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू गिव यू एज अ मैसेज. जजमेंट का कार्ड खुद ही फ्लिप करके आया है. एनी मोर मैसेजेस. किंग ऑफ वैंड्स, यू गोना बी वेरी स्टेबल इन योर लाइफ. आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मिलेगा एंजल्स की तरफ से. जजमेंट भी आपको मिलेगा, यू विल गेट जजमेंट, एंड आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है. दिस इज योर मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स. नाउ विल सी सम हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओके, सो वी हैव गॉट अ मे बी कार्ड. मे बी इज़ अ वेरी गुड एनर्जी. आपको कभी भी येस या नो वाले कार्ड से, नो से दुख होता है, येस से हम अटैच हो जाते हैं, मे बी से हम थोड़ा सा हल्का फुल्का रहता है. तो आपको कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि मेरे पर्सन आएंगे नहीं आएंगे. आ जाएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मतलब वैसे टाइप का जो डिटैचमेंट की एनर्जी है वो आपको फॉलो करनी है. आपके पर्सन आपको, जैसे आप डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हो, तो आपको ये वाला क्लैरिटी का मैसेज आ जाता है. योर पर्सन वांट्स टू से दैट दे लव यू, एंड समवेयर दे थिंक ऑल्सो इन द मैसेज मे बी दे लव यू. मतलब वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड, मैंने बोला था ना, वो कन्फ्यूज हो जा रहे हैं. हो सकता है वो आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मे बी दे लव यू, नॉट दैट पर्सन, ठीक है. एंड वाई आर यू सो एडिक्टिव. यू आर वेरी एडिक्टिव. 24/7 वो आपके बारे में सोचते हैं, चाहे ना चाहे आप उनके दिमाग में घूमते रहते हो. वो अगर आपको हटाने की कोशिश करे, ओवर स्ट्रेस ले ले, ओवर बर्डन ले ले, जो कि हमने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी देखा, ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क एंड ओवर बर्डन भी ले लेते, फिर भी आप उनके दिमाग में चलते रहते हो. वो आपको दिमाग से हटा नहीं पाते हैं. वो सोचते हैं कि मैं और नहीं सोचूंगा किसी भी तरीके से, या नहीं सोचूंगी किसी भी तरीके से, बट यू कीप ऑन प्लेइंग इन द माइंड, ठीक है. एंड वो आपको एक बड़ा सा मैसेज बोलना चाह रहे हैं. इफ इट्स अ मेल देन दे सेइंग दैट विल यू गिव अनदर चांस माय बेबी गर्ल. अगर वो एक लड़का है, मतलब if it's a boy then they will be saying this, and if it's a girl then they will say will you give me another chance my man, will you be mine one more time, this time we will be work it out together, ठीक है. तो वो साथ में इसको वर्कआउट करना चाहते हैं, आपके सामने आना चाहते हैं. आपको अपने एनर्जी में रहना है. अगर इंसान आपके लिए सही नहीं है तो वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगा, चाहे आप कितना चाह लो, वो आप कितना चाह ले. अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं होगा इन द लॉन्ग रन, इफ दिस पर्सन इज गोना बी टॉक्सिक फॉर यू एंड हार्मफुल फॉर यू, भगवान खुद ही उनको हटा देंगे आपके रास्ते से. एंड अगर ये इंसान आपके लिए सही होगा तो बेशक वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके रहेंगे. आपको बस फूल के तरीके से रिलैक्स रहना है,
ठीक है, और अपने पावर में भी रहना है। सो कॉम्बिनेशंस क्या क्या आती है आपके लिए, फूल भी रहना है एंड स्टेबिलिटी को भी रखना है, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं रखना है बट फूल की एनर्जी में रहना है। हाई प्रीस्टेस को आपको बनना है, मतलब यू नीड टू फॉलो spirituality, you need to follow water affirmations के साथ spirituality, you need to be very active in your life and yeah, these are all your energies and you will find new beginnings, you can be more focused on your career. Outcome क्या आएगा, you will have some celebration in your life, some clarity in your life, ठीक है, and you will be much more powerful in your life, you will get the judgment which you deserve, ठीक है। आपको बस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। दुख से जैसे आप निकल करके आ रहे हो आपको वैसे रहना है। टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी से निकल जा रहा है एंड योर पर्सन इज गेटिंग अ लॉट पैशनेट अबाउट यू। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड मेरे साथ कोई पर्सन रीडिंग को बुक कर सकते हो, जिससे आपको हीलिंग रेमेडीज भी मिलती है। एस्ट्रो चेकअप भी करवा सकते हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 300 पर टॉपिक पर रीडिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चंस एंड कैसे कॉम्बिनेशन में आप जाते हो, यू कैन बुक द रीडिंग्स। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मैं कभी कभी लाइव भी आ जाती हूँ, वहाँ पे अपने पर्सनल क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।